السلام علیکم، علاقائی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر حسین۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں 17ویں یوم آزادی کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ جگہ جگہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، گلی کوچے اور عمارتیں سج گئیں۔ خوشام میں یوم آزادی کی اہمیت کے حوالے سے واک کا انعقاد کیا گیا۔ قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خوشاب عبدالحمید سنبل اور وائس چیئرمین ضلع کونسل ملک مسعود نذیر راجر نے کی۔ جامپور میں جشن آزادی کے حوالے سے محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین میونسپل کمیٹی جامپور محمد اکرم قریشی نے خصوصی شرکت کی۔ چنیوٹ میں قبضہ مافیا کا راج، بیوہ غریب خواتین کو بچوں سمیت بے گھر کر دیا گیا۔ بے سہارا خواتین کی اعلیٰ حکام سے انصاف دلانے کی اپیل۔ بہاولپور میں جسٹس منصور علی شاہ نے ای لائبریری اور آئی ٹی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں ای لائبریری سے وکلاء کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ افتتاح کے موقع پر جسٹس حبیب اللہ سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلال پور پیروالا میں قائم پوسٹ آفس عمارت بوسیدہ ہونے کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ آفس سٹاف سمیت شہریوں کی زندگیوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے۔ انتظامیہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تماشا دیکھنے میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا شہریوں کو صاف پانی مہیا کرنے کا خواب چکنا چور۔ عارف والا میں لاکھوں روپے کی لاگت سے لگائے جانے والا واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ، علاقہ مکین، مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ رحیم یارخان میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑدرمی برقرار، ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث مریض ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ سندھ کی تباہال ایجوکیشن کو بہتر بنانے کی حکومتی کوششوں کے باوجود ایجوکیشن کا معیار بہتر نہ ہو سکا۔ سانگر میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے 400 سے زائد اسکول اب تک فعال نہ ہو سکے۔ اور ملک بھر میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ دریاؤں میں طوفانی کے بعد سیلاب کے خطرات بڑھ گئے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں یوم آزادی کی آمد ہے۔ ملک بھر کی طرح جڑانوالہ میں بھی 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے عوام کا جوش و جذبہ قابل ستائش ہے۔ تفصیلات محمد احسان الحق کی رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح جڑانوالہ میں بھی 14 اگست جشن آزادی کے تیاریاں عروج پر۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ جی ماشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھا جا رہا ہے، پچھلے سال کی تقریباً اس دفعہ زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ پوری فیملی آ رہی ہے اور شاپنگ کر رہی ہیں، بچوں میں بڑوں میں کافی جذبہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ دیکھیں بیجیز اور مارکس، جھنڈیاں، بریسلٹ وغیرہ، بچوں کی گلاسز، کافی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بچے بہت شوق سے خرید رہے ہیں۔ خریداری کے لیے آئی ہوئی فیملی کا کہنا تھا کہ وہی ریٹ ہے پچھلے سالوں والا، وہ جو پچھلے سال چل رہا تھا وہی ریٹ آج ہے، تو مہنگائی تو اتنی نہیں ہے، پھر بھی خریداری کم کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 14 اگست بہت خروش کے ساتھ منائیں گے ہم، اور انشاءاللہ ریلیوں میں بھی جائیں گے۔ عورتیں بھی بازاروں میں 14 اگست کے حوالے سے بچوں کے ملبوسات خرید رہی ہیں۔ بازار میں آئے ہوئے خریدار نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ملی نغمہ پیش کیا۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ کیمرامین رانا شہیل کے ساتھ محمد احسان الحق، عاجز قادری، کوہ نور نیوز، جڑانوالہ۔ جڑانوالہ کے بعد رخ کرتے ہیں ساہیوال کا، جہاں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ خاص طور پر بچے 14 اگست منانے کی بھرپور تیاریوں میں ہیں، اور کیوں نہ کریں، اس بار 17واں جشن آزادی جو منانا ہے۔ رپورٹ کریں گے فہیم صدیقی۔
इस दफा हम 70वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। इस जश्न को मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। हर साल की तरह शहर साहिवाल को सबज हलाली परचमों झंडियों से सजाया जा रहा है। बाजारों में स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। स्टॉल्स पर झंडियां, परचम, बैजेस और जश्न आज़ादी की शर्ट्स खरीदने में बच्चे मसरूफ हैं। और बच्चे तो खुशी की अलामत हैं। 14 अगस्त की खुशी बच्चों की खुशी है। इन्हीं के हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। खुदा करे हम इसी तरह 14 अगस्त मनाते रहें। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। जश्न आज़ादी की खुशी को पसे पुश डालकर लीगी रहनुमाओं ने रावलपिंडी के गली, चौकों, मोहल्लों को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने वाले नवाज शरीफ की तस्वीर से भर दिया है, जबकि रैली के लिए तयशुदा रास्तों से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे वसीम कुरैशी। जश्न आज़ादी की खुशी को पसे पुष्ट डालकर नून लीगी रहनुमाओं ने रावलपिंडी के गली, चौकों, महल्लों को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर से भर दिया है। मरी रोड, फैजाबाद, मरीड चौक, कचहरी चौक और दीगर मकामात से जश्न आज़ादी के हवाले से नस्ब किए गए साइन बोर्ड्स तस्वीर उतार कर इनकी जगह नाअहल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर नस्ब कर दी गई। इसके साथ साथ आने वाली रैली पे लगाए जाने वाले रूट से आवाम, दुकानदारों और नौकरी से वाबस्ता अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, आप देख रहे हैं, आपके सामने सारे हालात आपके सामने, उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं उनको सामने रखते हुए ट्रैफिक का बजाता तो कि प्रॉपर एक प्लान सीडीओ साहब ने, आरपीओ साहब ने और सीपीओ साहब की तरफ से जारी किया गया है। इस किस्म की रैली नहीं हो जाए क्योंकि ये तौहीन अदालत है। रोड बंद हो जाएगी, गरीबों की कारोबार खत्म हो जाएगी। एक दिन हमको किधर से तनख्वाह आएगा? न तनख्वाह है, प्राइवेट बंदे है। भाई इतना कारोबार चल रहा है, इतना वो लोग चल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे रैलियां होकर? रावलपिंडी कचहरी से लेकर मरी रोड तक 14 अगस्त के तमाम अवेजा बोर्ड को हटाकर नवाज शरीफ के हक में बोर्ड लगा दिए गए हैं। कल आने वाली रैली से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सिमाब गिल के साथ वसीम कुरैशी, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। और अब आपको बताएं, शहर कायद में जश्न आज़ादी के हवाले से स्कूलों में प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया गया है। डीएमसी के तालीमी कमेटी ऑफिसर का कहना है कि इन प्रोग्राम्स का मकसद बच्चों में आज़ादी की अहमियत को उजागर करना है। कराची से मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट। डीएमसी सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत 70वां 14 अगस्त शयान शान से मनाया जा रहा है। इस तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलोज और ड्रामे पेश किए, जिसमें हमारे आबा व अजदाद, बुजुर्गों और शहीदों ने कुर्बानियां दी और एक आजाद वतन बनाने का जिक्र किया। तकरीब में बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तालीमी कमेटी के चेयरमैन ने कहा, हम एजुकेशन के हवाले से बच्चों को अवेयरनेस दें कि 14 अगस्त को हम कितनी भरपूर तरीके से मनाते हैं और वो आगे अपने घर वालों को, अपने महल्ले में अपने लोगों को जाके बताएं कि 14 अगस्त से हमारी वाबस्तगी क्या है, हम एक जिंदा कौम है और जिंदा कौमें अपना आज़ादी किस तरह मनाती हैं। और हमारी कोशिश यही है कि बच्चों का टैलेंट भी सामने आए, टीचर्स की काविशें भी सामने आए और वो जज्बा जो पाकिस्तान बनते वक्त था और उसे डेवलप करते वक्त है वो और ज़्यादा प्रमोट हो। इस तरह की तकरीबात से बच्चों में उस जज्बे को उजागर करना है जो कि पाकिस्तान बनाते वक्त हमारे बुजुर्गों का था। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ मोहम्मद आबिद, कोहिनूर न्यूज़, कराची। महकमा बहबूद आबादी जिला खुशाब के ज़रिए तमाम यौम आज़ादी पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब अब्दुल हमीद सुंबल और वाइस चेयरमैन जिला कौंसल मलिक मसूद नसीर राजा ने की। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा की रिपोर्ट में। महकमा बहबूद आबादी जिला खुशाब के ज़रिए तमाम यौम आज़ादी पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करने के लिए एक वाक़ का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब अब्दुल हमीद सुंबल और वाइस चेयरमैन मलिक मसूद नज़ीर राजड़ ने की। वाक़ में डीयू पॉपुलेशन नसीर अहमद करबलाई, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इम्तियाज अहमद मांगट और पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर अकीला तबस्सुम समेत मुख्तलिफ ज़िली महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, रेस्क्यू 1122 के एहलकार और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर वाक़ के शुरका ने कौमी परचम और बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर यौम आज़ादी पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से जुमले दर्ज थे। हम सब ने अहद करना है कि ये अपने प्यारे मुल्क को अच्छे तरीके से चलाना है, इसकी हिफाजत करनी है। ये हम सब आज इस दिन का अहद करते हैं। यौम आज़ादी का दिन जिंदा कौमों की पहचान है और अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है।
उन लोगों से पूछा जाए जिनके यहाँ जिनको आज़ादी नसीब नहीं हुई। इस हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जिंदा कौमें हमेशा तरक्की करती हैं तभी जब उनके तमाम किस्म के जो ख़वातीन और हज़रात मिलकर काम करें। आज़ादी पाकिस्तान व काली चौक से शुरू हुई, जो इकबाल चौक समेत मुख्तलिफ मकामात से होती हुई सरवर शहीद पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब अब्दुल हमीद सुंबल समेत दीगर मुकर्ररीन ने वाक़ शुरका से खिताब करते हुए कहा है, आज़ादी का दिन मनाना जिंदा कौमों की निशानी होती है, क्योंकि ये तजदीद अहद का दिन है कि हम अपने मुल्क की सलामती और अमन के लिए कोशार रहेंगे और इसे तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोई कसर न उठा रखेंगे। जबकि वाक़ के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गयी। कैमरामैन हैदर अली पाशा के साथ अली रजा, कोहिनूर न्यूज़। माना हमदानी और गिरदोनवाह में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। हर कोई वतन की मोहब्बत में अपने घरों और गलियों को सजाने के लिए सब्ज हलाले परचमों समेत आराइशी अशिया की खरीदारी करता दिखाई दे रहा है। माना हमदानी से राना मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मुल्क भर की तरह माना हमदानी में भी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। आज़ादी का दिन जूं जूं करीब आ रहा है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों, गली कूचों, महलों, शहराओं, इमारतों और दीगर मकामात को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। बच्चों में जश्न आज़ादी की तैयारी के हवाले से खसूसी जोश और खरोश पाया जाता है। हम जश्न आज़ादी को बहुत पुरजोश से मनाएंगे, क्योंकि हम झंडिया वगैरह बैज वगैरह खरीद रहे हैं ताकि अपने घरों को सजा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहर के तमाम इलाकों में जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तानी परचम, झंडियों, बैज और दीगर आराइशी अशिया की फरोख्त के लिए सैकड़ों आरजी स्टॉल कायम हैं, जहां से शहरी जश्न आज़ादी के हवाले से आराइशी अशिया की खरीदारी जोश और खरोश से कर रहे हैं। इस साल में बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। स्टॉल्स पर मुख्तलिफ साइज के पाकिस्तानी परचम, झंडियां, बैज, कैप्स, सर पर बांधने वाली पट्टियां, पाकिस्तानी परचम के डिजाइन से आरास्ता टी शर्ट्स, परचम वाले सूट्स और आराइशी अशिया बड़ी तादाद में फरोख्त की जा रही हैं। आजादी के दिन को मनाने के लिए सबको है बेसब्री से इंतजार। ऐ वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे, हर शहरी के दिल की है पुकार। कैमरामैन जोया खान के साथ राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज़, माना हमदानी। हाल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। यौम आज़ादी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मटियारी की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें सीएन वर्क्स एंड सर्विसेज अरशद भुट्टो, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम संगरासी और पुलिस समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। परवेज अहमद बलोच ने इजलास में खिताब करते हुए तमाम अफसरान को सरकारी इमारतों और स्कूलों पर कौमी परचम लहराने के साथ साथ मिली नगमों के मुकाबले मुनाकिद कराने के अहकामात भी जारी किए। डीसी ने मटियारी में मैराथन रेस के इनाकात की हिदायत देते हुए कहा कि हम सबको वतन अजीज से मोहब्बत है और भरपूर जोशो जज्बे से आज़ादी का दिन मनाया जाएगा। 14 अगस्त की मरकजी तकरीब डीसी ऑफिस में परचम कुशाई से होगी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ अफसरान के हमरा मटियारी के अस्पतालों में मरीजों में मिठाई भी तकसीम की जाएगी। शुजाबाद में जश्न आज़ादी की आमद पर लोगों का जोशो खरोश दिसनी है। बच्चे, बड़े और खवातीन पूरे जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों में लगे हैं। शहर में जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं, जहां सब्ज हलाली परचम, झंडियां, सब्ज और सफेद लिबास, सब्ज और सफेद चूड़ियां, बैचिस और पाकिस्तानी परचम की कैप्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लोग खासतौर पर बच्चे 14 अगस्त मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 14 अगस्त के लिए खासतौर पर लिबास तैयार कराए गए हैं और घरों की सजावट के लिए खरीदारी भी जारी है। लोग जश्न आज़ादी ईद की तरह मनाने में मसरूफ नजर आते हैं। हर जानिब फिजा में मिली नगमों की गूंज है। शुजाबाद में लोगों का कहना है कि हम जिंदा कौम हैं और जश्न आज़ादी जिंदा कौमों की तरह भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। बहावलपुर में भी 17वें यौम आज़ादी की धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी हैं। बहावलपुर में पहली मरतबा 5 मकामात पर फूलों से पाकिस्तान का परचम बनाया गया। बहावलपुर से रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। बहावलपुर में पहली बार शहर में 5 जगहों में फूलों से पाकिस्तान का फ्लैग बनाया गया है। 1 यूनिट चौक, जीपी ऑफिस चौक, चौक फारा, मिलाद चौक। बहावलपुर में मुख्तलिफ इमारतों पर चरागाहों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, एक बड़ा इनोवेटिव सा काम किया कि हमने शहर की तकरीबन 5 जगहों पे हमने जो फूलों से हमने पाकिस्तान का फ्लैग बनाया है।
اس وقت تک جہاں تک میرے اس میں ہے نوٹس میں ہے کہ 2 جگہ پہ سیٹ ہو چکا ہے، ایک 1 یونٹ چوک پہ ہے اور ایک یہ جی پی او چوک پہ۔ میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ BWMC کے جتنے بھی جو سٹاف ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر سڑکوں پہ پائے جاتے ہیں، میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ انہیں اسپیشل ہرے رنگ کی جو ہے نا وہ جیکٹ جس کے اوپر فلیگ لگاؤ وہ آپ انہیں اس دن پہنائیں تاکہ ایک ویژول سا ایک لک ہے نا وہ بڑا بہتر ایک نظر آئے گا۔ کیمرہ مین خرم سعد کے ساتھ فضل جوید خان، کوہ نور نیوز، بھاولپور۔ اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں جامپور، جہاں جشن آزادی کے حوالے سے محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین میونسپل کمیٹی جامپور محمد اکرم نے خصوصی شرکت کی۔ مزید احوال بتائیں گے وقار احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ سوشل ویلفیئر حکومت پنجاب کی ہدایت پر دفتر سوشل ویلفیئر UCD جامپور میں جشن آزادی کی 70 سالہ تقریبات کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت میڈم تہمینہ امیر گورمانی سوشل ویلفیئر آفیسر جامپور نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین میونسپل کمیٹی حاجی محمد اکرم قریشی تھے۔ اس موقع پر مقررین جن میں صدر تقریب و مہمان خصوصی کے علاوہ مسز روبینہ افضل لاشاری اور دیگر نے کہا کہ لازوال قربانیوں کے بعد یہ پاک وطن ہمیں ملا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام بیرونی و اندرونی صہیونی طاقتوں کی مذموم سازشوں کے باوجود یہ ملک قائم و دائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا۔ اس موقع پر آزادی کیک کاٹا گیا اور 70 سالہ جشن آزادی کی یاد میں یادگار پودا بھی لگایا گیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا مانگی گئی۔ کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ وقار احمد، کوہ نور نیوز، جامپور۔ بہاولپور میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ نے ای لائبریری اینڈ IT سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر جسٹس حبیب اللہ احمد، جسٹس علی اکبر قریشی اور جسٹس امین الدین خان سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ ای لائبریری سے علم و آگاہی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، وکلاء ای لائبریری سے بھرپور استفادہ کریں اور کیسز کی تیاری کے لیے ای لائبریری کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع بشمول تحصیل کورٹ میں کمپیوٹر، پرنٹرز، وائی فائی اور دیگر سہولیات وکلاء کے لیے فراہم کی گئی ہیں اور ای لائبریری کی مدد سے دنیا بھر میں رابطہ اور علم تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ اس سے وکلاء کو مقدمات کی تیاری میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لودھرا ضلع کے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر انہیں لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ اور لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں اپنے کیس دائر کرنے کی سہولت مہیا کرتے ہوئے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکلاء کالونی کے قیام اور وکلاء چیمبر کے لیے جگہ کی فراہمی کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں۔ صدر ڈسٹرکٹ بار عثمان فاروق نے اپنے خطاب میں وکلاء کالونی کے قیام اور وکلاء چیمبر کے لیے جگہ کی فراہمی کا مطالبہ کیا اور چیف جسٹس کی ڈسٹرکٹ بار آمد پر شکریہ بھی ادا کیا۔ بعد ازاں جسٹس منصور علی شاہ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں کمرہ برائے ملاقات نابالغہ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ منصور علی شاہ نے پاک پتن کا بھی دورہ کیا جہاں ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر سید منصور علی شاہ نے وکلاء بار روم کو ایئر کنڈیشن کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ وکلاء کالونی کے حوالے سے اپنی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ملک بھر کی طرح پنڈی گیب، کھوڑ اور فتح جنگ سے بھی ملک آصف ایڈوکیٹ اور ملک ریاست صدریال کی قیادت میں نون لیگ کے کارکنوں کی ریلی اسلام آباد روانہ ہوئی۔ مزید تفصیلات ایوب خان کی رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح پنڈی گیب، کھوڑ اور فتح جنگ سے بھی ملک آصف ایڈوکیٹ اور ملک ریاست صدریال کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے سینکڑوں کارکنوں کی ریلی اسلام آباد روانہ ہوئی۔ اس موقع پر ملک ریاست صدریال اور ملک آصف ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پنڈی گیب نے شہر میں جو ہونے کھوڑ، دورنال، فتح جنگ، کرنول اور انشاءاللہ اسی اپنے قید استقبال رواب کو منج کے اور نواز شریف ذہنوں میں چلا گیا ہے۔ اسمبلی سے ہٹانے والوں ذہنوں سے نواز شریف کو کیسے نکالو گے؟ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت نون لیگ کا ہی ہوگا۔ ایوب خان، کوہ نور نیوز، پنڈی گیب۔ چنیوٹ میں قبضہ مافیا کا راج، بیوہ غریب خواتین کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکال کر گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ بے سہارا خواتین کی اعلیٰ حکام سے انصاف دلانے کی اپیل۔ سگرا بی بی اور زلیخا نواز نے 2 سال پہلے علاقے کے MNA کیسر احمد شیخ کے منشی اللہ دتا سے 11 مرلے پلاٹ خریدا اور سخت محنت مزدوری کر کے مکان کی تعمیر کرائی گئی، مگر قبضہ مافیا کا MNA منشی اللہ دتا کی پشت پناہی میں
जानू, बल्लू, रफीक, तारिक और शाह अली ने गरीब खवातीन के घर पर धावा बोलकर यतीम बच्चों और खवातीन को घर से बाहर निकाल दिया और उनके घर को मिसमार कर डाला और एहतजाज करने पर सुलेखा बीबी के मासूर बेटे को जान से मार देने की धमकी भी दी। गरीब खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से और IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें उनका घर वापस दिलाया जाए और मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। जलालपुर पीरवाला में कायम पोस्ट ऑफिस की इमारत वसीदा होने के बाद टूट फूट का शिकार है। ऑफिस स्टाफ समेत शहरियों की जिंदगियों पर मौत के साए मंडलाने लगे, जबकि इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखने में मसरूफ है। इमारत की खस्ता हाली किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है, जिसके पेश नजर ऑफिस में तैनात स्टाफ की जिंदगियां हर वक्त दाव पर लगी हैं, जबकि ऑफिस की 4 दीवारें समीबोस होने और सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम न होने से आने वाले लोगों की जिंदगियां भी खतरे से खाली नहीं। डाकखाने में रोजाना की बुनियाद पर बिजली, सुई गैस और टिकटों की मद में लाखों रुपए जमा होते हैं, मगर हिफाजती इकदाम करने की बजाय हुकाम बाला खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं, जिस पर अवामी और समाजी हलकों ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेते हुए इमारत के असर नो तामीर का मुतालबा किया है। रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स की हड़दर्मी बरकरार है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद मरीज जलीलो खार होकर रह गए। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, वहां मौजूद अपने नुमाइंदे शमसुद्दीन से जानते हैं। जी शमसुद्दीन, बताइएगा इस वक्त डॉक्टर्स का क्या मौकिफ है, मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेख ज़ायद अस्पताल में। यहाँ पे यंग डॉक्टर की हड़ताल को 9वां-10वां रोज जारी है। OPDs और तमाम ऑपरेशन थिएटर्स और इमरजेंसीज बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं डॉक्टर इलियास साहब। हमारे सीनियर लोग डॉक्टर नहीं आ रहे, यंग डॉक्टर, तो हमने सीनियर्स को उनकी कवरेज के लिए बिठाया हुआ है। तो मुख्तलिफ औकात में हम लोग उनको बिठाते रहते हैं, वो अपने मौब के साथ आते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि कोई इन्फ्लिक्शन ना हो। उसके अलावा हमारी जो है पर्ची भी चल रही है, टेस्ट वाले लेबॉर्ट्री भी चल रही है, और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन और MRI तमाम शोबाजा चल रहे हैं। रहीम यार खान, यंग डॉक्टर की हड़ताल की वजह से मरीज और इनके अहले खाना मुश्किलात से दो चार हैं। मुख्तलिफ शहरों और दही इलाकों से आने वालों को भी परेशानी का सामना है। रहीम यार खान 3 सूबों का संगम है। सिंध और बलूचिस्तान से मरीज यहाँ लाए जाते हैं। मरीजों का और इनके लवाकिन का कहना है कि डॉक्टर और पंजाब हुकूमत अपने मसाइल का हल करे ताकि मुस्तहक और गरीब तबका के लोगों को इलाज की सहूलत मुयसर आ सके। जी, सिंध की तबाहाल एजुकेशन को बेहतर बनाने की हुकूमती कोशिशों के बावजूद तालीम का मियार बेहतर न हो सका। सांगड़ में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए 400 से ज्यादा स्कूल अब तक फाल न हो सके। टंडो आदम के नवाही गांव मुंशी के में भी लाखों रुपए की लागत से स्कूल की तामीर की गई। स्कूल बन गया, मगर बासर वडेरे ने स्कूल पर कब्जा करके भैंसों का बाड़ा बना दिया। जहां वडेरे के जानवर सरकारी बिजली और सरकारी वसाइल का भरपूर फायदा उठाते हैं। सियासी असर रसूख की बिना पर सरकारी अफसरान भी ऐसे स्कूल का रुख नहीं करते। जब मीडिया की टीम कवरेज के लिए पहुंची तो बासर वडेरे के वफादारों ने मीडिया टीम को कवरेज करने से भी रोक दिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज FM नेटवर्क, बुरेवाला और कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।